Hello students, this is Anjali Chaturvedi and we'll be starting with the first chapter of chemistry, that is the language of chemistry. This chapter you have already studied in class 8. We have done lots of things in class 8 regarding symbols, then valencies, then radicals, how to make formula, then balancing and atomic mass unit. You have studied all those things in previous class. So we'll just simply revise uh, whatever we have done in class 8 and then we'll go ahead with the lesson. Okay, so here first thing which you have to keep in mind is what are pure substances. So you are aware of that pure substance are those which are made up of. Okay, so pure substance, first of all, we'll see what are pure substances. Pure substance is the one which is made up of molecules containing same kind of atoms. For example, carbon dioxide gas is a pure substance. All the molecules of it, wherever you find carbon dioxide, it is made up of two oxygen atoms and one carbon atom. Okay, so carbon dioxide. The molecule may contain similar atoms or dissimilar atoms. For example, if a molecule of same kind, that means H2, O2, N2. Okay, so this is the molecule of an element because it contains the atom of the same kind. But if we say that, okay, and then carbon dioxide, then water, then ammonia, these are containing different kinds of atoms. So thus we have compounds also and we have elements also as pure substances. Okay. Now, what is element? Element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simpler substance. ऐसा substance जिसको आप further divide नहीं कर सकते, means further मतलब उसको और break down नहीं कर सकते उसका, तो वो है आपका एक element. For example, oxygen एक element है, अब आप उसको further break नहीं कर सकते into anything simpler. ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. समझ में आ गया? तो इस तरीके से दे कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर बट एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर. All elements are made of atoms, the smallest particle of an element which represents all the properties of that element. This we have already done. This is the definition of atom which you have to learn. It is the smallest particle of an element which may not exist. जब हम बोलेंगे may not exist independently तो आपको ध्यान रखना है कि may not exist independently का मतलब होगा कि कुछ atoms ऐसे होते हैं जो they live alone. For example, ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन का एक एटम है तो ये अकेला नहीं रहेगा, या तो ये अपने जैसे ही एक के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा या ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा, लेकिन इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इस तरीके से दे मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो ऐसे कौन से एटम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली? वो हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन. क्या है ये हैं आपके इनर्ट गैसेस वाले. तो जो इनर्ट गैसेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अपने एटॉमिक फॉर्म में, तो इसलिए यही इसका एक एटम भी है और यही इसका एक मॉलिक्यूल भी है, बिकॉज इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. समझ में आ गया? तो इस तरह से वो एटम को जब हम कहते हैं मे और मे नॉट, तो मे जब हम बोलते हैं तो उसमें आ जाते हैं आपके एग्जिस्ट करने वाले में आ जाते हैं आपके एग्जिस्ट करने वाले में आ जाते हैं आपकी इनर्ट गैसेस, और जबकि बाकी सारे एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग अप to the atomicity. Now what is atomicity? इसकी definition आपको याद होनी चाहिए. What is atomicity? The number of atoms in a molecule of an element. कोई भी molecule है उसमें कितने atoms हैं. ठीक है. जैसे ऑक्सीजन है, उसमें कितने एटम है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें O2 लिखा है, यानी एक और एक दो ऐसे हैं, दो ऑक्सीजन है. ओजोन है, ओजोन में दिखाई दे रहा है तीन है, तो 1 2 and 3 यानी तीन एटम्स है. तो कितने एटम्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, वो इसकी एटॉमिसिटी है. तो ओजोन की एटॉमिसिटी हो गई 3, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हो गई 2. ओके. और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े वाले भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं C6H12O6, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी
इसकी एटॉमिसिटी होगी 24, तो उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक। ओके, पॉली एटॉमिक। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है ये, दिस इज वन मॉलिक्यूल। इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? 12 + 6 दैट इज 24, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 24, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें वन एटम हो, डाई एटॉमिक मतलब जिसमें टू एटम हो, और पॉली एटॉमिक मतलब मोर देन 3। ओके, मोर देन 3 वाला ट्राई एटॉमिक हो गया, 3 वाला ट्राई एटॉमिक हो गया। तो इस तरीके से ये आपका एटॉमिसिटी आ जाएगी। ये भी हम सब पढ़ चुके हैं, बस अभी रिवाइज कर रहे हैं बस इसको हम। अब यहाँ पे देखेंगे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली किसके किसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। जनरली जब भी हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप एग्जाम्पल हमेशा किसका देंगे? नोबल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल में एक ही एटम है इनके मॉलिक्यूल में, इसलिए ये मोनोएटॉमिक होते हैं। सो द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1। समझ में आ गया? लेकिन मेटल्स जो हैं हमारे, मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इनको भी आपने देखा है ना, जब हम लिखते हैं तो हम Na लिखते हैं, हम Na2 नहीं लिखते हैं, हम Na4 नहीं लिखते हैं। अगर सिंपली लिख रहे हैं, खाली सोडियम लिख रहे हैं, तो जब हम सोडियम का एक लिखते हैं, सोडियम मेटल को, तो हम Na लिखते हैं खाली, कॉपर को हम Cu लिखते हैं, तो इसके साथ हम कोई भी नंबर नहीं लगाते। तो आप पूछेंगे कि ये मोनोटॉमिक कैसे हो गए? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी, चूंकि ये मेटल हैं तो ये क्या करते हैं, इनके बहुत सारे जो एटम्स हैं वो मेटालिक बॉन्ड्स के साथ कंबाइंड होते हैं और बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। तो इसमें जो कितने एटम होंगे किस पर डिपेंड करेगा? साइज के ऊपर। बहुत बड़ा पीस आपने सोडियम का लिया है तो उसमें नेचुरल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, छोटा पीस लिया है तो उसमें कम होंगे। क्योंकि मेटालिक बॉन्ड के साथ रहते हैं, नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको मोनो एटॉमिक कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से कार्बन को भी हम मोनो एटॉमिक कंसिडर करते हैं। लेकिन जनरली अगर हम वो पूछें, जेन्युइनली पूछें, तो हमारे जो नोबल गैसेस हैं दे आर एक्चुअली द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें आप याद रखेंगे कि मेटल्स को भी हम मोनोटॉमिक कंसिडर करते हैं और हम कार्बन को भी मोनोटॉमिक करते हैं। डायटॉमिक मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डायटॉमिक है, ओजोन ट्राइएटॉमिक है, और फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है। उसके बाद पॉलीएटॉमिक में आपका S8 आ जाता है जो कि आपका ऑक्टा एटॉमिक है। तो S8 जो है हमारा सल्फर है, वो है हमारा ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम? दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। कैपेबिलिटी, लेकिन मॉलिक्यूल में कैपेबिलिटी है एग्जिस्ट करने की इंडिपेंडेंटली। ओके, तो एंड बोथ ऑफ देम शो द they exhibit all the properties of that element। तो ये जो डेफिनेशन है वो कॉमन रहती है। A molecule is the smallest particle that has that may or may not exist independently, बस may or may not ऐड करेंगे और बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी एटम और मॉलिक्यूल की। When atoms or molecules of different element combine in fixed ratio, they form the molecule of a compound। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे molecule of compound बन गए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर्स कब बनते हैं? आपको पता है मिक्सचर्स कब बनते हैं? जब केमिकली कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड दे आर लूजली पैक्ड। इट में बी होमोजेनस एंड इट में बी हेटेरोजेनस। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, कैसे नेमिंग शुरू हुई है कंपाउंड्स की? तो कंपाउंड्स को जनरली 1600 AD में ऑल्केमिस्ट ने क्या ट्राई किया? ऑल्केमिस्ट यू ऑल नो, पहले कोई सेपरेट डॉक्टर्स या पहले सेपरेट कुछ जो ये मेटलर्जी करते थे, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते थे या झाड़ फूक करते थे, या जो भी लोग थे, इन सब कॉमन था एक्चुअली। ओनली वन पर्सन वाज डूइंग ऑल दीज थिंग और उनको हम ऑल्केमिस्ट कहते थे। तो दीज ऑल्केमिस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट, इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हम इसको पिक्टोग्राफिक सिम्बल्स बताएंगे। हम हर जो भी हमारा एलिमेंट है उसके हम एक सिम्बल्स देंगे। तो ये कुछ प्रीवियस सिम्बल्स हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो सबको एक बार देख लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कि किस तरीके से सर्कल, देन सर्कल के अंदर एक डॉट, और क्रेसेंट्स मतलब सिल्वर के लिए क्रेसेंट यूज किया उन्होंने, और इस तरीके से प्लैटिनम के लिए P लिखा था सर्कल के अंदर, आयरन के लिए I लिखा था, कॉपर के लिए C लिखा था, गोल्ड के लिए यू कैन सी द डिजाइन एंड ऑल, मरकरी के लिए क्या लिखा था। इस तरह से उन्होंने पहले डाल्टन्स ने सिंबल्स दिए थे एलिमेंट के। ओके, उसके बाद क्या हो गया, जॉन जेकब बर्जीलियस जब आए तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो पहला लेटर है उसका हम उसी का नाम बना देते हैं, उसी का सिंबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का पहला O है
तो O रख देते हैं, हाइड्रोजन का H है तो H रख देते हैं, C कार्बन कर देते हैं, एंड सो ऑन. बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड? But in some cases, suggested symbol did not agree with the English name of the element. This was because some of the symbols were based on their Latin names also. तो जब Latin name पे based है तो उन्होंने कहा ऐसा करेंगे, सिंबल हम फिर जो लैटिन नेम है उसके हिसाब से रखेंगे, इंग्लिश नेम पे नहीं रखेंगे. तो गोल्ड का ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. ओके, कि गोल्ड जो है वो ऑरम है, AU, इसीलिए उसका सिंबल AU है. ये सारे सिंबल्स आपको अभी तक आई होप याद हो चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं आपने तो प्लीज़ डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. सारे सिंबल्स आपको एलिमेंट्स के आने चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको आने चाहिए. आपको मैंने 8th क्लास में आपसे बहुत कहा कि आप रेडिकल्स के सिंबल्स याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू डू. प्लीज लर्न ऑल द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स सो दैट यू कैन फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, तो ये हो गया आपका, ये आप याद कर लेंगे. उसके बाद फिर क्या हुआ, जो IUPAC है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मैंने आपको क्लास में कई बार बताया भी कि ये वो संस्था है जो हमारे पूरे केमिस्ट्री को लुक आफ्टर करती है. तो इसने ये क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं कि यही करते हैं, पहला अक्षर ले लेते हैं, और अगर मान लीजिए फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यूज हो गया है, कॉपर में C यूज हो गया है, सॉरी कार्बन में C यूज हो गया है, तो हम कॉपर के लिए हम उसके फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 या इस तरह से करके हम उसका फर्स्ट 2 करके 2 लेटर के सिंबल्स रख लेंगे. तो इस तरीके से सिंबल स्टार्ट हुआ. व्हाट इज सिंबल? यू ऑल नो, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द अब्रीविएशन. एलिमेंट का सिंबल बनाते हैं. क्यों बनाते हैं सिंबल? हम पूरा नाम क्यों नहीं लिखते? हम टाइम बचाने के लिए उसको उस तरह से एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. सल्फर का S है, हाइड्रोजन का H है. इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो सिंबल है इट शुड बी रिटन इन कैपिटल. पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, यानी हाइड्रोजन का H कैपिटल है, O का ऑक्सीजन का O कैपिटल है. लेकिन अगर कॉपर लिखना है तो C कैपिटल होगा और U स्मॉल होगा. ये इसका रूल है. तो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल. तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग करेंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है आपको कि कोबाल्ट में C कैपिटल होगा, O स्मॉल होगा. ये आपको ध्यान रखना है कि C कैपिटल और O स्मॉल ही होगा इसमें, तभी कोबाल्ट बनेगा. अगर मैं C कैपिटल और O कैपिटल कर दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इसको सिंबल्स लिखेंगे. तो पहला कैपिटल और दूसरा आपका स्मॉल लेटर होगा. अब क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल के, क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले क्या सिंबल के सिग्निफिकेंस है, हमें उस एलिमेंट का जो नेम है वो पता चल जाता है. इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट. देन 1 एटम ऑफ द एलिमेंट. अगर हमने खाली सिंबल लिखा है तो उसका 1 एलिमेंट है, भले ही वो एग्जिस्ट करे या ना करे. अगर मैंने O लिखा तो इसका मतलब, अगर मैंने O लिखा तो इसका ये क्या मतलब है कि दिस रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ऑल्दो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट वो अलग अलग फॉर्म में करता है, समझ में आ गया, लेकिन ये उसका एक एटम है. दिस इज 1 एटम, तो रिप्रेजेंट करता है उसका 1 एटम. और उसके बाद डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, जो उसका जो मास है, एटम का मास आपको पता चल जाता है. ठीक है, मॉलिक्यूल का भी मास आपको पता चल जाता है आपके उस सिंबल को देख के. अब फॉर एग्जांपल N स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. अब ये आप जो 14 ग्राम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये हमारा मोल वाले कॉन्सेप्ट में आएगा, तो मैं आपको उसको समझा दूंगी. फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर मैं नाइट्रोजन लिखती हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट नाइट्रोजन, और ये है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो है 14 AMU. ठीक है, 14 AMU इसका एटॉमिक मास है. कुछ एटॉमिक मासेस भी याद कराएंगे आपको इस क्लासेस में आगे चल के, तो आपको एटॉमिक मासेस भी याद हो जाएंगे. ओके, देन ये रहे आपके सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स. तो इनको आप लर्न कर लेंगे, ये आपकी होमवर्क है एक तरह से, तो ये आप कर लेंगे इसको लर्न. और वैलेंसी आपको पता है क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या उसको शेयर करेगा, तो वो हमारी वैलेंसी हो जाएगी. वैलेंसी को हमेशा ध्यान रखेंगे. कह चुके कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, चूँकि एक नंबर है ये. तो अगर मैं बोलूँ सोडियम की वैलेंसी, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, और
क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो उसके साथ आप प्लस, उसके साथ आप माइनस नहीं लगाएंगे. इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर डोनेटेड और एक्सेप्टेड और शेयर्ड, दैट इज द वैलेंसी. ओके, आ जाएंगे मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है वैलेंसी के बारे में. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम, a number of electrons that an atom can lose, gain or share during a chemical reaction is called its valency. क्या lose करेगा, क्या share करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी. तो अगर वो लूज करेगा, गेन करेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. और अगर वो शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ये भी हम आगे पढ़ेंगे. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, the electrons which are present in outermost shell are known as valence electrons. So what are valence electron? The electrons which are present in the outermost shell. अगर मान लीजिए किसी सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम के एटम में कितने शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं. तो पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में उसके, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके 1 है. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम, तो एल्यूमिनियम में लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 3. तो समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, अंदर कितने हैं वो बात नहीं, कितने शेल हैं, बस जो लास्ट शेल है आपका उसमें कितने हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. फिर आ जाता है हमारा आयंस क्या होते हैं. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको 8 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों जो है आयन फॉर्म होता है. आपको अगर याद हो तो स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको कि स्टेबल होना एक अलग बात है, न्यूट्रल होना एक अलग बात है, दोनों सेम चीज़ नहीं है. न्यूट्रल अलग है और जो स्टेबल है चीज़ वो अलग है. तो उसको हम अभी बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, जिसको नहीं समझ में आया था लास्ट ईयर वो कॉन्सेप्ट को समझ लेगा कि कैसे हम आयन फॉर्म करते हैं, कैसे आयंस फॉर्म होते हैं. तो आयंस बेटा तब फॉर्म होते हैं जब आप जब कोई भी एटम जो कि न्यूट्रल, हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं. सोडियम जो है एक न्यूट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है. एटॉमिक नंबर 11 है मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281. अब क्या है, इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है. ठीक है, तो ये बिल्कुल कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है. ओके, न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है. लेकिन कैसा नहीं है, स्टेबल नहीं है. स्टेबल नहीं है. स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने ड्रॉ किया था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. समझ में आ गया. ओके, तो उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. जबकि ऑक्टेट स्टेट के लिए लास्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देगा किसी को, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 8. यानी इलेक्ट्रॉन 1 चला गया, इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितने रहे, उतने ही थे. जो 11 प्रोटॉन है अभी उसके पास, तो प्रोटॉन 11 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो अब ये कैसा हो गया, ये न्यूट्रल नहीं रहा, ये चार्ज हो गया, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस बिगड़ गया है. तो वो क्या करेगा, बैलेंस बिगड़ गया है मतलब जो चीज ज्यादा है उसका चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, है ना. अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. इस केस में आपने देखा सोडियम के केस में प्रोटॉन रह गए सेम 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. तो उसकी वजह से उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पर कितना ज्यादा, 1 ज्यादा. तो इसलिए सोडियम का आयन बन गया Na पॉजिटिव. तो इस तरीके से आयंस फॉर्म होते हैं, और आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली होते हैं. पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायंस. याद आया
कैटायंस और एनायंस मैंने समझाया था कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। अभी बता देती हूँ एक बार फिर से इसको। जो हम बोलते हैं कैट आयन, तो ये याद रखेंगे, कैट आयन तो पॉजिटिव सिंबल है, और एनायन अपना नाम खुद बताता है, आई एम अ नेगेटिव आयन, मैं एक नेगेटिव आयन हूँ, आई एम एनायन। ओके, तो इस तरीके से याद करेंगे। तो कैट आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरीके से आयंस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लॉस और गेन से होते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे कुछ इन्होंने दिखाया भी है कि सोडियम जो है वो सेम चीज जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था। मैग्नीशियम का एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में 2, लेकिन ऑक्टेट करने के लिए इसको ये 2 किसको देने पड़ेंगे, डोनेट कर देना पड़ेगा। दे दिए 2 उसने, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर से, नेगेटिव पावर जो है वो कम हो गई, तो जो आयन है वो कैसा बन जाएगा, डाइवेलेंट बन जाएगा, 2 हो जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम में 3 बाहर हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन तीनों को डोनेट कर देगा, 3 प्लस चार्ज आ जाएंगे, और ट्राइवेलेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी एलिमेंट उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतने उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो पॉजिटिव आयंस आर नोन एज कैटायंस। ओके, अब ये देखेंगे कि वैलेंसी कैसे डिसाइड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करते हैं कि वैलेंसी क्या है। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैलेंसी। तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 1, जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैलेंसी 2, जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैलेंसी 3, जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैलेंसी 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तक 1 2 3 4 है तब तक तो वैलेंसी 1 2 3 4 है, लेकिन अगर बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, वो देगा नहीं 5, वो क्या करेगा, 3 ले लेगा। तो ध्यान रखेंगे जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो वैलेंसी हो जाएगी 3, जब 6 होगा तो वैलेंसी 2, जब 7 होगा तो वैलेंसी 1, जब 8 होगा तो वैलेंसी 0, क्योंकि ये तो पाना है उसको, ऑक्टेट पाना है, तो वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैलेंसी डिसाइड होती है। और जिन वैलेंसी 1 2 एंड 3 जिनकी होती है वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वैलेंसी 1 2 3 होती है, यानी कि जिनके आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 2 और 3 होते हैं वो मेटल होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उनकी वैलेंसी भी 1 2 3 होगी। जैसे क्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1 है लेकिन वो मेटल नहीं है। ओके, वो मेटल नहीं है क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो है 7, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसने एक्सेप्ट करा, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, लेकिन वो मेटल नहीं है। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे उनकी वैलेंसी भी 1 2 3 होगी, और वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ठीक है, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स विथ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, यूजुअली मेटल्स उन्होंने कहा क्योंकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, कार्बन 2 ही हैं ऐसे, अभी आपके सिलेबस में आप जो करेंगे वो कार्बन और सिलिकन, तो उसमें कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और सिलिकन जो है वो आपका क्या है, मेटलॉइड है। ओके, मेटलॉइड है। तो एलिमेंट्स विथ 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर नॉर्मली नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होते हैं। एटम्स विथ 7 6 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल गेन 1 2, ये मैंने गेन और वाला बता दिया है, ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। सेम चीज क्लोरीन का आप नोटिस करेंगे 287, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको ऑक्टेट पाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और ले लेगा इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए ये नेगेटिव आयन बनेगा, एनायन बनेगा। ऑक्सीजन देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2 6 कितने कम ऑक्टेट में 2, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल टेक,
एंड देन इट विल बिकम, ये हो जाएगा 2 8, इसका आगे ऑक्टेट मिल जाएगा इसको, लेकिन इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसने लिए हैं उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में 2 5 यानी 3 कम है, तो 3 ले लेगा तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव पावर आ जाएगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। नेगेटिव आयंस आर ऑल्सो नोन एज अनायंस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये आपको याद करना है, ये याद कर लीजिएगा। ये ऊपर वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, ऊपर वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नीचे वाला वैलेंसी, वही जो मैंने आपको लिख के पीछे बताया था। सो दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीचे उसकी वैलेंसी दी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1, then valency 1, if 2 then 2, 3 then 3, 4 then 4. So till 4 it goes on same valence electron till 4, valency will also be 4, but when it crosses 4 5 then it will be 8 minus 5, then 8 minus 6, 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7 and 8 minus 8, that will be the valency. ओके, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एन रेडिकल। रेडिकल पे भी चार्ज होता है, आपने देखा ही है, जैसे हमने NH4 का लिया था, एक रेडिकल है NH4 पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इस कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये, समझ में आ गया, इसका एक वैलेंसी मानेंगे इसके हम। ओके, एग्जांपल्स ऑफ शेयरिंग ऑफ एटम्स। One atom of chlorine combines with one hydrogen atom to form a molecule of hydrogen chloride. So the valency of chlorine is 1. ठीक है, हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम कि अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और उसके साथ क्लोरीन, एक ही क्लोरीन आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजन की कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी सबको पता है। इसमें बिल्कुल ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको बता दी है, दूसरे की निकालनी है, ये दूसरे की क्या है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन की भी क्या होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के पास कितनी प्लेसेस खाली हैं, 2 प्लेसेस, दैट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने वैलेंसी निकाली है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं एक नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ, तो 2। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लग रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। यहाँ पे देखेंगे कार्बन के साथ कितने लग रहे हैं, 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4। क्यों, ये बस इसलिए है क्योंकि हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ओके, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी ये भी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ जिनकी जो वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है, वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज हैं उनकी, तो वो जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल वैलेंसी होती है। और उसकी क्यों, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न, ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। बस अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैलेंस शेल है, जनरली इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज करते हैं, लेकिन कई बार कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ एटम्स जो हैं वो अंदर वाले शेल से भी, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, ठीक है, पेनल्टीमेट। अब यहाँ पे ऐसे कुछ समझ लो कि जैसे मान लीजिए ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला, तो ये होगा पेनल्टीमेट, अंदर वाला, थोड़ा उसके जस्ट अंदर वाला, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो, और इससे भी कर रहा है, तो उसके क्या हो जाती है, वेरिएबल वैलेंसी हो जाती है। ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सब आप हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट। वेरिएबल वैलेंसी के आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। ये जो सफिक्स अस और इक वाला था वो अभी यूज़ नहीं हो रहा, मॉडर्न में हम रोमन न्यूमरल लगा के यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेना है इसको कि अगर उसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, 2 पॉजिटिव, उसकी एक ही एलिमेंट की 2 वैलेंसी हैं और दोनों पॉजिटिव वैलेंसी हैं, तो उसमें हम अस और इक लगाते हैं। तो अस जो है वो लोअर वैलेंसी वाले में लगाते हैं और एक जो है हायर वैलेंसी। यहाँ लोअर हायर का मतलब है कि मान लीजिए कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 है, तो इसमें लोअर कौन सी हुई, इसमें लोअर हुई 1, है ना, लोअर हुई 1। तो जब लोअर 1 हुई तो उसमें हम अस लगा देंगे, तो वो हो जाएगा, उसके नाम क्या गया, अस लगा देंगे तो क्यूप्रस। और अगर उसकी हायर वैलेंसी 2 है तो क्यूप्रिक। लेकिन आयरन में 2 और 3 है, तो इनमें कौन सी हायर है, इसमें हायर है 3, तो एक जो किसके साथ लगेगा, 3 के साथ, और अस किसके साथ लगेगा, 2 के साथ। तो इस तरीके से ये नाम हमारे आ जाते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा इस टेबल को, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी आपकी जितनी भी दी हुई है इनको याद करेंगे।
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला या उसको हम केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं, ये सिर्फ सिंबल्स को यूज करके हम एक डिनोट करते हैं एक मॉलिक्यूल को। तो जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंबॉलिक फार्मूला लिखते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो एक मॉलिक्यूल का फार्मूला आप लिखते हैं। अगर आपने H2O लिखा तो इसका मतलब दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का ये वन मॉलिक्यूल है, अमोनिया का ये वन मॉलिक्यूल है। ओके, इस तरीके से ये वन मॉलिक्यूल का हम सिंबल लिखते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके अगर सिर्फ दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो ये भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और अगर ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे अमोनिया और क्लोरीन दो मिले हैं तो अमोनियम क्लोराइड बना दिया इन्होंने। यहाँ पे सोडियम और कार्बोनेट मिले हैं तो सोडियम कार्बोनेट बना दिया इन्होंने, और इस तरीके से वाटर बना दिया है अलग अलग उसमें मिलके फार्मूला बना दिया। ये फार्मूला आप बना सकते हैं बहुत इजीली अगर आपको टेबल याद हो जाती है। क्या सिग्निफिकेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला की? सबसे पहले आपका क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस देता है, कितने उसमें एटम्स हैं और उसका एक मॉलिक्यूल कितना हैवी है, ये आपको बताता है ना, मास बता देता है। और उसके बाद आप कौन कौन से उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है। वाटर के अंदर दो तरह के प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर रेशियो क्या है उनका, जैसे हाइड्रोजन, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, तो रेशियो बता देता है हमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का। मास बता देता है हमें। तो इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको कि carbon dioxide, suppose carbon dioxide it's given. Now you know that this is one molecule of carbon dioxide. Each molecule, that means this molecule contains how many carbon atoms? One carbon atom. And how many oxygen atom? Two oxygen atoms. Okay, and then मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो वो कार्बन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी थोड़ा सा बताती हूँ, आगे हमारे काम आएगा। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है कार्बन का, वो है आपका 12। कार्बन का 12 है। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। समझ में आ गया? तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, यानी C प्लस O2। C हमारा हो गया 12 प्लस O 16 प्लस 16 गिव्स हाउ मच? 44। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 44 AMU। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। आ जाते हैं रेडिकल पे। रेडिकल के लिए मैंने आपको बताया था वो टेबल आपको याद करना है, जिसने नहीं किया है, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। तो रेडिकल क्या है? रेडिकल क्या, आयन्स क्या है आपको समझ में आ गया। जब एक कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आयन्स बना लेता है। रेडिकल्स भी चार्ज्ड होते हैं, बस वो एक उसके बन सकते हैं एक एलिमेंट के, और दो एलिमेंट टुगेदर भी मिलके चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं और उसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशन याद कर लेंगे। रेडिकल ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बिहेव एज सिंगल यूनिट विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज जरूर होगा रेडिकल के ऊपर। तो सिंपल रेडिकल तो ये हो गया, आपका सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम आयन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्लोरीन आयन बन गया है। तो ये इस तरीके से आपके सिंपल रेडिकल भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड रेडिकल होते हैं जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके बना देते हैं, जैसे आपका कार्बोनेट हो गया है ना, आपका कार्बोनेट हो गया या आपका सल्फेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सल्फर भी और ऑक्सीजन ने मिलके एक चार्ज एंटिटी बना दी है। तो ये आपके हो गए कंपाउंड रेडिकल। तो सिंपल रेडिकल आपके एक एलिमेंट का, और आपके कंपाउंड रेडिकल दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट का मिलके उसको बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये एक्चुअली आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कि जब भी कोई एक एसिड सब्सटेंस किसी बेस सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है, मिलता है, तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
ओके, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट ईयर एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में भी बताया था आप लोगों को कि व्हाट आर बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल आर यूजुअली विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, एसिड रेडिकल्स आर द रेडिकल्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स या कैटायंस, ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स और एनायंस। तो ये आपके, जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया है आपका पोटेशियम का, तो पोटेशियम जो है वो आपका बेसिक रेडिकल है। क्लोरीन जो आपका दिया है वो आपका नेगेटिव आयन है यहाँ पे, ओके। तो ये आपका एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये जो 2 टेबल है आपकी बुक में ये आपको याद करने हैं। ये है वो आपका टेबल जो आपको याद करना है। जैसे ये स्कूल रीओपन होंगे, फर्स्ट थिंग विच आई विल डू इज आई विल लिसन टू दीज radicals, okay, from each one of you. I want you to learn all the radicals so that you can easily make the formula. After knowing this, you can easily make the formula. And please don't give excuses that you don't have. This is the last year book also, so you can copy from, you can learn from that. Now we'll learn how to write a chemical formula. उसके लिए मैंने आपको बताया पीछे कि you have to learn that table. Unless and until you learn the table, you'll not be able to make the formula, the crisscross formula. The method which we use is known as crisscross method. इतना ध्यान रखिए, पहले जो है वो आपका कैटायन आएगा और सेकेंड इंस्टेंस पे आपके एनायन आएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम। तो सोडियम का हमारा जो चार्ज है वो प्लस है, वैलेंसी उसकी हमारी 1 है। हमें वैलेंसी ना भी पता हो तो हमें चार्ज ना भी पता हो तो हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। क्लोरीन की भी हमारी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, हम अपनी उसकी जो वैलेंसी है हमें याद होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके वैलेंसी जो है सोडियम की वो उसके नीचे लिख देंगे, क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है हम लिख देंगे सोडियम के नीचे। और जब हम रीड करेंगे इसको या साथ में जब करेंगे तो इसके नीचे जो वैलेंसी है इसको रखेंगे 1, और क्लोरीन के नीचे जो है उसको रखेंगे 1, और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और द फॉर्मूला बिकम्स NaCl। ये तो बिल्कुल सिंपल हमारा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमें बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने हैं। और सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हम बनाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले आप लिख लेंगे एल्यूमिनियम, और हाइड्रोक्साइड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, OH होता है, ठीक है, OH होता है। एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड दोनों के सिंबल आप लिख देंगे। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो आप लिखेंगे हाइड्रोक्साइड के नीचे। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो 3 होती है ये आपको पता होना चाहिए, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला ठीक से नहीं बता पाएंगे। तो Al के साथ हम 1 लगा देंगे और OH के साथ हम 3 लगा देंगे, ओके। अब ब्रैकेट हमने क्यों लगाया तो भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये OH जो है एक कंपाउंड रेडिकल है, और ये जो 3 है बाहर ये दोनों के लिए काम करता है, O के लिए भी 3 और H के लिए भी, इसलिए हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया। तो हमारा बन गया Al, और 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा AlOH होल थ्राइस, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैंने बोला मैग्नीशियम तो आप फॉर्मूला Mg लिख देंगे, नाइट्राइड मतलब IDE मतलब नाइट्रोजन होगा, नेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्राइड का N लगा दिया। और अब हमने मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो है 2, वो हमने नाइट्रोजन के नीचे लिख दी। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो है हमारी 3, तो वो हमने मैग्नीशियम के नीचे रख दी। और अब हम जब इसको रीड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Mg3N2, ओके, Mg3N2, okay, so this way we can make the formula, okay। तो ये हमारा फॉर्मूला मेकिंग है। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए दिए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इनको प्रैक्टिस करिए घर पे और इनको बनाइए। यही आपका
वीकेंड का, सॉरी वीकेंड वर्ड तो सारा ही वीकेंड ही है। तो ये आपका वर्क है जो आप घर पे करेंगे इसको। अपने आप आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हाइड कर लीजिएगा और सिर्फ ये देखिएगा। अपने आप को असाइनमेंट दीजिएगा कि चलिए मुझे ये वाले नाम कहीं लिख लिया आपने 8-10 कोई भी उठा के, और इनसे आपने फॉर्मूला बनाया और उसको चेक किया। ठीक है, सो दिस मच वर्क यू कैन डू एट होम। ओके, ये कुछ रूल्स हैं नेमिंग के जो आपको पता होने चाहिए। जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो मेटल पॉजिटिव होता है तो पहले लिखा जाएगा मेटल, और नॉन मेटल बाद में लिखा, पहले पॉजिटिव वाला बाद में नेगेटिव वाला लिखा जाएगा। और जो नाम होता है वो पॉजिटिव वाले का सेम रहता है और नेगेटिव वाले के नाम के आगे आइड लग जाता है ना। ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाता है, क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाता है, क्योंकि ये सब नेगेटिव है। जबकि जो कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, ये पॉजिटिव वाले हैं तो इनका नाम चेंज नहीं होता है। फिर अगर टू नॉन मेटल्स के बीच में भी कंपाउंड बन जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि जो नाम के आगे आप लगा देंगे ट्राई एंड टेट्रा और पेंटा कि कितने यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन कितने, 3 है तो ट्राई क्लोराइड, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 है तो पेंटा क्लोराइड। समझ में आ गया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब तो उसकी नेमिंग किस तरीके से होती है, हाइपो वर्ड यूज होगा अगर ऑक्सीजन 2 से लेस है। अब यहाँ पे देखें NaClO यानी सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। ये एक्चुअली आप इसको जब याद करेंगे तो आपको रेडिकल जब आप याद करेंगे तो आपको इनके सबके नाम याद आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से कम है तो हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे। 2 है तो कुछ भी नहीं यूज करेंगे, सिंपल क्लोराइड यूज करेंगे तो ITE लग जाएगा। और अगर 3 है तो क्लोरेट ATE यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है, और 4 ऑक्सीजन होगा तो पर क्लोरेट यूज करेंगे। तो इसको आप याद कर लेंगे। जब एसिड को नेम करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। एसिड को बाइनरी एसिड्स क्या होते हैं, जो आपके दो उससे मिलके बनते हैं, तो बाय एडिंग 2 एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, 2 एलिमेंट्स मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, और H और F मिलके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना। तो ये जो हमारे बाइनरी एसिड्स हैं इनको हम हाइड्रो वर्ड यूज करेंगे, और इक टू द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, पहले के आगे हाइड्रो लगा देंगे और दूसरे के आगे इक लगा देंगे, तो हाइड्रो, और फिर क्लोरीन का क्लोरिक हो जाएगा, फ्लोरीन का फ्लोरिक हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से नेमिंग करेंगे एसिड की। सेकेंड इंस्टेंस में अगर पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, मतलब कि हाइड्रोजन तो अकेला है लेकिन सल्फेट या आपका कंपाउंड जो है वो रेडिकल है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रो तो पहले के लिए यूज करेंगे, हाइड्रो पहले के लिए नहीं यूज करेंगे, और तब आप क्या यूज करेंगे, आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि H2SO4 जो सेकेंड एलिमेंट है सल्फर, तो सल्फ्यूरिक एसिड लग जाएगा, और लास्ट वाला आपका नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। पहले वाले में हम अगर कंपाउंड रेडिकल यूज कर रहे हैं तो हाइड्रो वर्ड यूज नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड है इसका। ठीक है, तो और अस और इक कब लगेगा ये भी आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे बड़ा वाला जो है उसमें आप अस यूज करेंगे, ऑक्सीजन एटम अगर लेस है तो अस यूज करेंगे। और ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2SO4 एंड H2SO3। अब इसमें ऑक्सीजन एटम जिसमें ज़्यादा है उसमें इक यूज करेंगे, और जिसमें कम है उसमें अस यूज करेंगे। तो इसमें ज़्यादा है तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें कम है तो आपका आ जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ये याद रखेंगे, इक जो है वो बड़े वाले के साथ है। ओके, तो सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस एसिड। और उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हमारा नाइट्रिक एसिड वाला। HNO3 इज हमारा नाइट्रिक एसिड, तो HNO2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कम किस में है, सॉरी ऑक्सीजन कम किस में है, नीचे वाले में, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा अस, और यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ लग जाएगा इक। तो ये नाइट्रिक और ये नाइट्रस एसिड। तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करेंगे। ये कुछ ऐसे
नेम्स हैं जो ट्रिवियल हैं, ट्रिवियल मतलब कि उनका कोई रूल फॉलो नहीं करा उन्होंने, बस ऐसे ही नाम रख दिए गए और कॉमन नेम के साथ ही उनका वो नाम जो है वाइडली पॉपुलर हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। अब ये देखेंगे हमारा नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, अमोनिया। अब अमोनिया को अमोनिया क्यों कहते हैं भाई, NH3 है ना, लेकिन अमोनिया क्यों कहते हैं, अमोनिया नाम क्यों पड़ा, जबकि ये क्या है, नाइट्रोजन है और उसमें ट्राईहाइड्राइड है, 3 हाइड्रोजन है, इसका नाम होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनिया। उसी तरीके से वाटर को, इसको हम कहते हैं वाटर, है ना, जबकि इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। समझ में आ गया, तो ये इसका केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसको पॉपुलरली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर। समझ में आ गया, तो इस तरीके से हम ट्रिवियल नेम्स भी रख सकते हैं। वैलेंसी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। अब आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कुछ वैलेंसीज आपको पता ही होनी चाहिए, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, है ना। तो ऑक्सीजन एक ऐसा है कि ज़्यादातर कंपाउंड्स में होता है, तो जिस तरह से आपको इस तरह का अगर है तो आप किस तरीके से उसको निकालेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोसीजर दिया है टू फाइंड आउट दी वैलेंसीज को देखते हैं हम। सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया, मान लीजिए हमें NO2 में नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है, ओके, हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी नहीं पता, हमें ऑक्सीजन की पता है, तो हमने पहले सबसे पहले लिख लिया NO2, उसके बाद हमने इसकी वैलेंसी इंटरचेंज कर दी, जिसके ऊपर जो नंबर था उसको इंटरचेंज कर दिया, तो N के ऊपर 2 चला गया और O के ऊपर कोई O का जो 2 है वो N के ऊपर चला गया और N का जो कुछ नहीं है वो O के ऊपर चला गया, यानी 1 चला गया। अब वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो आप इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका बन जाएगा N4O2, ठीक है। द रिजल्ट गेव द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे NO2 में नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या ली गई है, वो 4 ली गई है यहाँ पे। तो समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप और भी वैलेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए काम कर रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, जब इनके कंपाउंड्स हैं और आपको इनकी वैलेंसी पता है और उनके साथ जो दूसरा है उसकी वैलेंसी आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए। हमने ऑक्सीजन लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, हाइड्रोजन लेते तो 1 से मल्टीप्लाई करते, क्लोरीन लेते तो 1 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हमारा एक पार्ट फिनिश हो गया है। उसके बाद आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं सेलिना के, वो ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको बहुत आराम से, ऐप भी है सेलिना की जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस दिए हैं इनके सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो आप उन सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर लीजिए और उनको पढ़ना शुरू करिए और उनको लर्न करिए। सो मीनवाइल इन दिस डिफिकल्ट टाइम आई थिंक वी विल वर्क टुगेदर सो दैट वी फिनिश द सिलेबस वेल इन टाइम एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन द चैप्टर्स। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो इट इज़ बेटर आप उसको पूछ लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। तो जब भी हमारा ये टाइम ओपन होगा, व्हेन यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस, देन यू प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।